Yes, any queries? I'm taking anything today. जो मैं उसमें किया हो, प्रैक्टिस किया हो, क्लैरिटी नहीं रहती है। तो वेबिनार के टाइम पे आई एम फोकस्ड विद केस स्टडीज। होगा, सिंबल होगा, आइकन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ दिखेगा। देन मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आपको मुझे अनम्यूट करना होगा। to connect each other. बाहर गए ना जरा कैसे Any query, please? क्वेरी पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर क्वेरी नहीं पूछोगे तो सीखोगे। यस अनुपम बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास करने में, बट ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। But sir, actually I have a general question. Can I talk to you? I mean regarding this now? बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, आपका सेटअप पे जैसे लाइक ए गुड सेटअप, मुझे टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस वो तो मिल जाता है। I was actually talking from a previous thing, but is there any way that I know whether that trade will be successful regarding some time? I mean, what I'm trying to say is that suppose a trade takes 10 minutes or 5 minutes, वो जो time का flavor आता है वो क्या आपका setup में है, or do you feel that is necessary? I don't know why I'm not able to understand your query. I request you to. Sir, मैं आपको और maybe I can try once more. Suppose मैं इंटरडे पे आपका सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे 245 पे एक एंट्री आया. My question is, I know that maybe system will hit the target, but should I take the trade, or since it is very late, maybe I should avoid? Okay, understood. तो आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे आप स्टडी करोगे, हाँ हाँ, तो वो कन्विक्शन आपको आता जाएगा ऑटोमेटिकली. अच्छा अच्छा अच्छा. एंड और सर ट्रेड इनिशिएशन, प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग, ये सब की बात है, तो ये प्राइस पर रिपोर्ट से बात समझ में नहीं आएगी. ओके. ये प्राइस पर रिपोर्ट का मैंने पर्पस भी समझाया कि आप लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका जो कुछ भी अप्रोच है, और ज्यादातर लोग न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, किसी भी ओपिनियन एड्रेसेस पे काम करते हैं. तो अकॉर्डिंगली बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रेड, बिफोर बिलीविंग समवन, बिफोर बिलीविंग एनी अदर सोर्स, आपको खुद भी एक बार स्कैन कर लो कि हाँ अकॉर्डिंग टू प्राइस फॉर रिपोर्ट भी बाइंग में है या सेलिंग में है, और कब से बाइंग सेलिंग में है. इट विल गिव दैट्स ऑल. बाकी एंट्री, एग्जिट, रीइनिशिएशन, ये सब तो 2 दिन के वेबिनार में हम कैसे सीख सकते हैं ना. हाँ सही में सर. और सर एक जनरल सजेशन और चाहिए आपका.
I mean, जब मैं ट्रेड करता हूँ, I always try to be only with Nifty index. Do you think it is a good idea to be only focused with Worst idea. Nifty index? Worst Sir? idea. Worst Worst idea. idea. Okay. Because I'll give you the logic for that. Consistently trading any single script, say Reliance or only Maruti or only SBI or only Nifty or only gold or only silver or only Nifty or only bank, what will happen, you know, every day, every time, there cannot be opportunity in all the days, all the weeks. But if you are Okay. consistently following only single script, two scripts, you will force the trade which is not there. Yes. And Yes. you will not allow the play to set up. Yes. Script को ट्रेड करने के बजाय one should have some trading strategy, and in that trading strategy, whatever scripts are coming, you should trade that. Okay. Okay. Master, Yes, I get your point. master the trading strategy, because under that particular trading strategy, definitely there will be few scripts on daily time frame basis, weekly time frame, on monthly. A trading strategy which should work on all the scripts, all the time frame. Yes. So develop a trading strategy on all the time frame, all the scripts, all the market, all the exchanges, and Okay. under that strategy, whatever scripts are, you trade accordingly. Okay. Yes. Trade I get your the point. trading Yes. strategy, not the scripts. इसको हम गुजराती में पार्टिसिपेंट्स जो शिक्षित है उनके दिमाग में ऐसा बैठा के रखा है, स्क्रिप्ट માંથી સોદા નહીં ગોતો, સોદા મુજબ સ્ક્રિપ્ટ કરો. Don't ever attempt to find the trades from particular script. Under some particular trading strategy, whatever scripts are coming, that alone you should trade. Yes, I got your point. Sir, or a last 90% question. people losing money in this market हाँ. because they consistently trading only Nifty Yes. or only Bank Nifty. And in rising market, they want to find some resistance always. And they keep on selling. And they are getting trapped all the time. Yes, I understand. I mean, yeah, that's actually what I do when I understand my mistake. Next query. Thank you, Go sir. to someone. Yes, please. आशीष तिवारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप मुझे अनम्यूट कीजिए. यस सर, आप मुझे सुन सक रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो. यस यस, ऑडिबल. ओके. बोलो. सर, मेरा 2 क्वेश्चन थे. शायद आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ओके टू आस्क. डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट वरी अबाउट दैट. यू जस्ट ओके. एक मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे हम बोलते हैं कि हायर लोज बनते हैं जो कि हाईलाइट होते हैं. तो अगर हम एग्जांपल के लिए देखना है तो फॉर एग्जांपल हम रामको सीमेंट ले सकते हैं. केस स्टडी के साथ ही बात करनी चाहिए. आप और मैं कुछ जानते ही नहीं, जो भी जानता है स्क्रिप्ट जानता है. हाँ. तो अगर हम सबसे लास्ट में गए तो यहाँ पे सर 2 हाईलाइटेड लो है, एक है 830 का और एक है उसके बाद में
एक ऐसे नहीं करना चाहिए हमें सर। सबसे पहले फर्स्ट टाइम बाइंग कहाँ से शुरू हुई तो आपको मालूम करना होगा कि रिसेंट डार्क रेड कब था अकॉर्डिंग टू द डेट। तो अकॉर्डिंग टू द डेट रिसेंट डार्क रेड 16 अप्रैल को था। मतलब यहाँ पे बाजार इट वॉज फॉलिंग। कहाँ से बढ़ना चालू हुआ, फर्स्ट टाइम बाइंग कहाँ से अकर हुई, 29th डेट डार्क ग्रीन, अप एरो डार्क ग्रीन, बॉटम आल्सो डार्क ग्रीन। ऐसे देखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप हायर बॉटम्स की बात कर रहे हैं, हायर लोज की बात कर रहे हैं, तो यहीं से वापस देखना चाहिए 29 मई से। फर्स्ट बॉटम यहाँ पे 502 था, हायर बॉटम 531 है, फिर हायर बॉटम 585 है, तो 531 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। फिर 595 90 है, तो 595 60 प्रीवियस बॉटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। नाउ 600 है, भले ही ये डार्क ग्रीन नहीं है बट कम से कम डार्क रेड भी नहीं है ना, तो ये दिस वन आल्सो इज ए हायर बॉटम ओनली। इस तरह से हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम ही बना रहा है। 669 इज ग्रेटर देन 636, 666 is greater than 669 only, because या तो इक्वल है, because though it has gone below 669 half on 17th August and 18th August, but it is not close below 669 half. Correct. So it is still higher bottom only, equivalent to higher bottom की सीरीज जो है वो मेंटेन किया है। फिर 680 is greater than 666. Here 664 is lower than 682. But has it closed below 682? No. तो ये हायर बॉटम ही है। 87 is greater than 664. 750 is greater than 687. 830 is greater than 750. 750. 846 is greater than 830. इस तरह से आपको समझ में आएगा कि 500 रुपए से हायर बॉटम, वो भी कंस्टेंटली ग्रीन कलर का बॉटम बना बना के ये लगातार न्यू राउंड ऑफ बाइंग इज बिगन। जितनी बार हायर बॉटम आया, जितनी बार ग्रीन कलर का बॉटम आया, फ्रेश बाइंग हैज कम। इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर। तो सर ये जो ग्रीन हाईलाइट होता है, अभी मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे अगर हम यहाँ पे 846 देखेंगे तो यहाँ पर 844 भी है, 852 भी है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ, सिर्फ 846 हाईलाइट हुआ है। तो इसके पीछे कुछ ये है क्या, उसका कुछ इम्पोर्टेंस है? क्योंकि 844 के पास डाउन मूव नहीं था, डाउन एरो नहीं था। 840 के पास डाउन एरो नहीं था। 20 नवंबर को ही है ना डाउन एरो दिख रहा है आपको। अच्छा, तो जब वो डाउन एरो रहेगा तो वो हाईलाइट होगा। डाउन एरो में जो लोएस्ट लो है वो हाईलाइट होगा। जैसे यहाँ पे हाईलाइट हुआ है तो डाउन एरो भी था और एक ही डाउन एरो था, बट उसका लोएस्ट लो 830 है। फिर हियर आल्सो डाउन एरो है ऑन 12th अक्टूबर। तो ये मूव बोलते हैं। ये डाउन मूव में लोएस्ट लो क्या था? 750। ओके, दैट हैज बीन हाइलाइटेड। यहाँ पे भी डाउन एरो है 18 सितंबर को, बट ये डाउन एरो में लोएस्ट लो कितना था? व्हाट वाज इट? 687.80। तो उसको हाईलाइट किया है। लोएस्ट लो ऑफ डाउन मूव हैज बीन हाइलाइटेड। ओके, तो अभी जैसे ये हायर बॉटम बनाते जा रहा है, तो यहाँ पर अभी 4 दिसंबर या 7 दिसंबर को डार्क ग्रीन नहीं है, बट ट्रेंड को देखते हुए वी स्टिल कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस। ये अभी रिसेंटली कहाँ से बढ़ना चालू हुआ? तो रिसेंट हाई 881.65 है। It traded on higher side on 27 November and closed above that.
अच्छा, तो जब तक वो 881.65 के ऊपर है, जब तक ये 846 के ऊपर है, खास करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर समझ लो कि किसी को 500 रुपए से एंट्री मिल गई है, हायर बॉटम देख के, रेड कलर डार्क ग्रीन, अपर डार्क ग्रीन, हायर बॉटम डार्क ग्रीन, ये देख के किसी ने 500 550 से एंट्री की हो और वो प्रॉफिट में है, तो जब तक वो 830 के नीचे, हायर बॉटम ये दोनों में लोएस्ट क्या है, 830 के नीचे बंद नहीं होता है, तब तक उसको होल्ड करना चाहिए। एंड ये 881.65 के ऊपर जाने के बाद वो लगातार 881.65 के ऊपर ही बंद आ रहा है। कभी इतना जब ट्रेंडिंग मार्केट हो तो 40-50 पैसा मैथमेटिकली छोड़ देना चाहिए। ओके। अच्छा सर, एक और चीज मैं देख रहा था, बहुत सी बार ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्काई ब्लू कलर और उससे केस स्टडी, लेट अस स्पीक अलोंग विद केस स्टडी। ओके, केस स्टडी 1 मिनट से मैंने निकाला था। केस स्टडी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी रहेगी, हाँ, बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ सर, 26 मार्च को क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। बोलो केस स्टडी ये हो गया। नहीं, ये वाला नहीं, मुझे केस स्टडी ये था कि जिसके अंदर में सर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के विद इन ही एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ना फेल हुआ है ना सक्सेस हुआ है, लेकिन उसके बीच में ही इन बिटवीन एक्युमुलेशन स्टार्ट हुआ और वो एक्युमुलेशन सक्सेस फेल होने के पहले डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो मैं वो केस स्टडी सर आप किसी और के लिए जा सकते हैं, मैं ढूंढता हूँ, मैंने किया था लेकिन मैंने नोट डाउन नहीं किया, तो मैं आपको थोड़ी देर में फिर से देवराज, Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I have 3 questions, sir. बोलो। Sir, I want to clear the best entry of the script, sir. When the bull confirmed the bull dead, sir, or accumulation come from dead, sir, after? Both ways. But it means red color should be dark green, or arrow should be dark. Okay, sir. So see, show the practical, sir. These conditions should satisfy first. Oh, okay, sir. Say in There's a best entry, sir. Or in your preferred script. Do you have any of your this date color dark green? Sir? Okay, sir. Dark green. Recent blue also okay, sir. dark green. The first time. Yes, sir. For the first time, it has occurred on 29th of May, right? Yes, sir. Yes, sir. This is a bull entry, sir. Bull entry. After that, whatever pink color top and pink color down arrow comes. Yes, sir. All are accumulation. Yeah, definitely, sir. Yes, sir. This all of your accumulation. And accumulation is confirmed about 629, sir. Pink color, close above pink color top. Yes, sir. A pink color top, the recent pink color top 29. Accumulation will fail below? Below 531. 531. Recent. Yes, sir. Sir, once more question, sir. वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है देवराज। Wait, sir. No.
Hello, hello, sir. Can you hear clear, sir? Hello, sir. बोलो देवराज बोलो. Sir, our one more question, sir. Sir, बोलो आप once any again, other question. accumulation. Okay, sir. Accumulation once confirmed, sir. After the next day, the accumulation failed. So what I do, sir? The buying is continued, sir. Stop the buying, sir. Buying position we have to square off. Okay, sir. Once stop the failed the accumulation. Yes. If accumulation is failed, we have to Okay, square sir. off all the buying position. But we cannot go short. Okay, sir. Little bit. That means little bit to square off, sir. Little bit means all position you have to square off. We cannot hold Okay, buying sir. position. Okay, sir. Because it is mentioned here, when closes Okay, below sir. the recent low, it is no more considered as accumulation. Yes, sir. And we have to exit. Okay, sir. Okay, sir. Okay, shall I go to someone Thank you, else? Prashant, bolo. Good afternoon, Prashant from Surat, sir. Bolo. Sir, could you open Tata Motors? Tell me, Prashant. Sir, could you open Tata Motors? Okay, sir. Sir, my question is accumulation complete नहीं हुआ है. Let it Okay. load now. Tell me the date. April, sir. April or May. April, May 2020. Yes, sir. Just a little bit, sir. Above. Date first time dark red was last was on 30th March. Yes, sir. And on first time date is converted into dark green. Up arrow also dark green. Bottom also Yes. dark green. So on 30th April, bulls have entered for the first time. Yes, sir. Now, sir, this 93.75. Sir, this is the 93.75 on 30th March, April. It signifies accumulation or what, sir? On 30th April, first time date color is dark green, up arrow is dark green, bottom is also dark green, right? Now Yes, on sir. 4th May, pink color down arrow has come. Yes, sir. On 4th May only, this will be highlighted. 93.75 high will be highlighted as pink color. So this is accumulation. Okay, sir. And this accumulation will be failed only when closes below 22.55. Yes, sir. Until that, we should keep on buying on every decline. And this Yes, accumulation will confirm when closes above 93.75. 75, sir. So it's coming up to 93.75 on 13th May, but not closing above that. And 72.55 is coming up to 79.60, but not going below 72.55. Hold on to 93.75 only. Now 2nd June, it is for the first time closed above 93.75. Yes, sir. So we'll say accumulation is confirmed. Accumulation is high. Okay. It was in accumulation, but it is confirmed.
2nd of June. ओके सर इसके बाद भी एक अकोमोडेशन स्टार्ट हुआ है सर 8 जून को 9th जून को, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, डाउन एरो और हाईलाइटेड हाई ओके सर सेटिस्फाइड ऑन 9th जून, सो 9th जून को अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। ओके सर इसके बाद ही दूसरा एक अकोमोडेशन स्टार्ट हो रहा है नीचे। उसके बाद हम ये दो भाव को पकड़ के रखेंगे 7960 119.15। यस सर तो यहाँ पे 7960 तक ये आया, 92 तक आया, 119.15 हायर से ट्रेड नहीं किया, 119.15 हायर से ट्रेड नहीं कर रहा, 119.75 हाँ सर मेरा ट्रेड नहीं किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है, इससे पहले भी एक आया है। हाँ तो ये सब में हायर कौन सा है, यही कंफर्म नहीं हुआ। ओके 8 जून वाला ही कंफर्म नहीं हुआ। हाँ तो नेक्स्ट तो उससे लोअर है 110.80। ये तो भी उसको कंसीडर accumulation करना ही है। नहीं, ये तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, 119 फर्स्ट सर कौन सा है, 119.15 तो 119.15 के ऊपर ही कंफर्म होगा। ओके सर अब वो देवराज का क्वेश्चन था कि अक्यूमुलेशन भी हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो तो क्या करें। जैसे यहाँ ओके पे सर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर ना, यस सर स्काई ब्लू कलर। तो ओके, दिस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो विल कंफर्म व्हेन क्लोजेस बिलो 9180। तो ये 9180 के नीचे जा ही नहीं रहा है, तो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में रहा हो। बट अल्टीमेटली वी शुड नो कि डेट का कलर क्या है, डार्क ग्रीन, अपर रो क्या Yes, है, sir. डार्क ग्रीन, बॉटम क्या है, डार्क ग्रीन। तो जितने भी बुल के घर में अक्यूमुलेशन के फेज आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के फेज आते हैं, लाइक दिस ब्लू कलर बॉटम ऑन 19th जून, sky blue color up arrow and bottom, any distribution in bull's house will be confirmed only when 9180 के नीचे बंद हो। Okay, sir. This was participant देवराज की यही क्वेरी थी, बट आई वाज लुकिंग फॉर केस स्टडी। केस स्टडी अपने को यहाँ पे मिल गया है। 9180 के नीचे अगर विल कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूशन, बट बाइंग के घर में है, बुल के घर में है, तो डरने की जरूरत नहीं है जब तक ब्लू कलर का बॉटम जो है उसके नीचे क्लोज नहीं हो। तो ये ऊपर नीचे होके कितना रुलाया, और बाद में जब 119 के ऊपर बंद हो गया 10 अगस्त को, तो वहां से न्यू राउंड ऑफ बाइंग हैज बिगन। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. रवि बोलो। Hello, sir. यस रवि। Okay, sir. Couple of queries तो अभी के केस स्टडीज से सॉल्व हुई हैं, but I want to still go to INFI. सर इसमें 4th जून if you see, नहीं, first 4th November actually. हम्म 4th November, yeah. Sir, so 4th November, this is just beginning of distribution. हम्म So I wanted to check. So the situation right now is that neither confirmation nor failure of distribution. So it is continuing in that phase, or how we have to read in this
situation. If you go down, I did not find below. It is in bull's house or bear's house? Red date, sir. Red color, dark red. Bears. Highlight dark red. Correct, sir. Down arrow is also dark red, isn't it? Yes. Like in bull's house, when it is trading with pink color top, we are preferring to buy with the recent highlighted low. Bull with pink top, we prefer to buy. Okay. Now we have come to that level where we need not use the language pink top. If you practice enough, let us say accumulation. Correct. So accumulation is intact until the low before the pink color top, before the accumulation is not traded on lower side, right? Not close below that. Correct. We prefer to buy only. Yes. The same way in bear house. This is a clear-cut distribution. Correct, sir. And this distribution will fail only when closes above 1158. Right. So there is 4 type of trades in the market, 4 type of traders in the market. Say somebody wants to invest buy in Infi. What will be his approach? Fresh buying. He will avoid until closes below, until closes above 1158. Right. Second type of buyer who is already holding Infosys. He will say, बाबा ये तो बैर के घर में है, distribution भी हो रहा है. Correct. Though distribution will confirm only below 1051. Right. Distribution will fail only above 1158. Correct. So let me exit with the stop loss of 1158. जब भी 1158 के ऊपर बंद होगा तो मेरी जो होल्डिंग है मैं वापस इनिशिएट कर लूंगा, प्रोजेक्टिंग की डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो जाएगा. बुल के घर में अक्यूमुलेशन हो तो हमको यही प्रोजेक्ट करना है कि अक्यूमुलेशन ही कंफर्म होगा. घर में हो तो हमको यही प्रोजेक्ट करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेल नहीं होगा. बुल के घर में अक्यूमुलेशन फेल होने की प्रोबेबिलिटी 20% है. ओके. बेयर के घर में, लेट मी कम अगेन, लेट मी शेयर अगेन. के घर में अक्यूमुलेशन कंफर्मेशन 80% है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 20% है. ओके. बेयर के घर में डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी 1051 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 80% है और 20% ऑफ द टाइम ही वो 1158 के ऊपर क्लोज करके डिस्ट्रीब्यूशन फेल करेगा. और ये आपको देखना है तो आप जहां से ये रिपोर्ट शीट समरी अवेलेबल है, प्राइस पर का रिपोर्ट प्राइस से अवेलेबल है, 2000 से अवेलेबल है. सिर्फ ये एक सिनारियो देखो, सिर्फ एक सिनारियो. डेट डार्क ग्रीन हो, अप एरो डार्क ग्रीन हो, बॉटम भी डार्क ग्रीन हो और accumulation होता हो. How many times accumulation is confirmed? How many times accumulation is failed? ओके. फिर ऐसा देखो कि डेट का कलर डार्क रेड हो, या जैसे अभी जैसे इसमें आई भी डार्क रेड हो, तो कितनी बार डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंफर्म होता है, कितनी बार डिस्ट्रीब्यूशन फेल होता है. उससे क्या होगा कि समझ लो कि 1158 के ऊपर बंद आ भी गया आने वाले दिनों में, राइट, तो भी आपको पेन नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम होगा कि होता है 20% ऑफ द टाइम होता है. बट कंसिस्टेंटली अगर मैं ये पैटर्न को फॉलो करता हूँ तो 80% ऑफ टाइम आई विल गो राइट. That's very useful, sir. Yeah, okay. I'll check also.
So better to This will be be not going with the 20%. Yeah. यस, यहाँ पे 1158 तक आकर 1158 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर, आज भी इन्फी 1153 तक ही गया। मैं बिकॉज मेरी क्वेरी था वीकेंड का, तो मैंने चेक किया। देखो ना कितनी बार 1155 आया है। हाँ 1158 9/11 को आया, 17/11 को आया, 24/11 को आया, और ये 7 दिसंबर को भी आया। और सर आज का भी क्या 1153 1154 इट इज बिलो 1158, जबकि ड्यूरिंग द डे इट रीच 1164 और कुछ ऐसे ही क्रॉस किया था। बट इट इज नॉट क्लोजिंग अबव 1158। नो। और एक और बात बोलता हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ जी। वन मोर थिंग। ये स्टडी करना होगा थोड़ा, मैंने कभी हाईलाइट नहीं किया है जी। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आज अगर 1158 के ऊपर बंद होता तो डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाता। यस। बट 1158 के ऊपर जाकर 1158 के ऊपर बंद नहीं हुआ, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म नहीं हुआ, या डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर का कंफर्मेशन नहीं मिला। नो सर। इसका मतलब ये है कि आज का जो हाई है 1167, हाँ जी। ऊपर जब तक वो बंद नहीं होता है, मतलब ये इसने आज कंफर्म किया कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही रहना चाहता हूँ। करेक्ट। क्योंकि अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेल करना रहता तो आज 1158 के ऊपर क्लोज दे देता। हाँ जी। बट उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेल नहीं करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म करना है बाय क्लोजिंग बिलो 1051। सिंपल वे में समझते हैं, बाजार या तो इसके ऊपर बंद होगा या इसके नीचे बंद होगा, राइट? करेक्ट। या तो 1158 के ऊपर बंद होगा या 1051 के नीचे बंद होगा, राइट? यस सर। अब 1158 तक जाके कितनी वो रुक मेहनत गया, कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और 1158 के ऊपर जाके भी उसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसका इरादा क्या है? बात करो, Sir, किसी और को पूछने की yes. जरूरत ही नहीं है। इंफोसिस में क्या लगता है, किसी और को पूछने की जरूरत ही नहीं। आप ही देखो ना, नहीं, 1158 yes. when it is not managing to close above 1158, though it has come up to that level, वो चाहता Right. तो आज 11 के ऊपर बंद कर सकता था इंफोसिस। No, this is very practical point because मैं ऑब्जर्व आपका यही मैं बात सोच रहा था कि वो लोग आज I don't watch, but for Infi when I started watching तो 1200 का भी कॉल देके गए हैं। अभी फंसेंगे जो भी होगा, but I want to follow data which you have given. So don't follow me also. मेरा एक ही इंटेंशन है, मेरा एक ही गोल है, एक ही विजन है। I do not want you to follow anyone. I want you to follow market itself. Yes, very clear. आपको इंफोसिस से बात करना सीख जाओ। तुझे क्या लगता है इंफोसिस जवाब देगा? फर्स्ट आपको इस बात में बिलीव करना होगा। Yes. कि I can Talking. talk with market. I can speak with market. I can listen to the market. That मुझे I think beautifully said. Beautifully said. हाँ. मुझे इंसान से बात करनी हो तो उसके बारे में बात करूंगा या उसके साथ बात करूंगा? No, beautifully said. Because in so much reading, ये कभी ऐसे कहीं पे मैंने देखा, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कि try and listen and talk to the script or the market is a very strong concept. So इसीलिए आई एम प्रैक्टिसिंग। जब तक आपने 2 दिन का वो दिया है क्वेरी टाइम, करो सर करो कुछ भी और करो, होल न्यू ट्रेडिंग वर्ल्ड विल ओपन अप फॉर यू।
सर ये जो गाइडलाइंस आपने दिया है उसमें आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, जस्ट बॉक्स 2 होल्ड एंड ऐड point B, in this dark green and then followed by low bottom is highlighted with green color. So this means the same dark green or it means green color which is different? डार्क ग्रीन वो ऐसा दोनों कोई डार्क ग्रीन मेंशन है इसमें होने चाहिए या एक डार्क ग्रीन है एक ग्रीन है? ये मुझे क्लियर नहीं हुआ ऑन द गाइडलाइन सीमेंट, पेज। जैसे अभी हम रामको सीमेंट ले रहे थे, यस फर्स्ट टाइम डेट डार्क ग्रीन कब हुआ? apply in any script, but we have just discussed this Ramco cement now. ओके में फर्स्ट टाइम डार्क ग्रीन हुआ, उसके Correct. बाद जितनी भी बार ग्रीन कलर के बॉटम आए हैं उतनी बार फ्रेश बाई आई है, उतनी बार बुल्स हैव गेन द स्ट्रेंथ, उतनी बार फ्रेश बुल्स ने एंट्री की है। So both the word in the guideline point 2B should be dark green sir, or it is dark green and then green? वही मैं पूछ रहा था from the text अब जो आपका box 2 में text यहाँ पे लिखा है फ्रेश बुल पार्टिसिपेट्स व्हेन अप एरो इज डार्क ग्रीन correct and previous recent low bottom is highlighted with dark green color। यहाँ पे dark green Okay. लिखना चाहिए। ओके ओके बस वही पूछ रहा था। ठीक है मैं समझ गया एक्चुअली सर। नहीं चाहिए, सब समझ के ही करना चाहिए। I will make it here dark green color। हाँ so both are same because okay Same okay clear, then it is very clear। Here it should be dark green color, here it should be dark red color। हाँ ठीक है got it। एक और बात बोलूं रवि, हाँ जी गो थ्रू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमको मिल ही गई। यस अब जब आप केस स्टडी के साथ करोगे, 10-12 स्क्रिप्ट 10 साल के ऊपर करोगे तो आपकी हाँ खुद जी की एक समझ डेवलप होगी। यस वो समझ आपकी जो भी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें आप लिखते जाओ एंड हैव योर ओन गाइडलाइन। okay Because okay my that's a guideline, good your guideline, समझ is more important than Himanshu Shah। ठीक है? हाँ जी definitely hope one day I can write my own guideline। हो जाएगा, वन डे क्यों, 10 केस स्टडी 10 साल के ऊपर करो, हो जाएगा। अपने को करना क्या, जो भी समझ में आता लिखना है ना, लिखना है। तो लिखते 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 आप खुद अपने 5 पॉइंट बना लोगे, और जब 5 पॉइंट बना लोगे ना, यू आर मास्टर इन ट्रेडिंग दिस। सर एक और केस स्टडी एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो जैसे रिलायंस ने थोड़ा आप दिखाया इस जो आपने बेल आउट अपॉर्चुनिटी बताई, इज दैट एग्जांपल ऑफ दैट? बिकॉज वो बिकॉज बाकी डिटेल वी हैड डिस्कस्ड ऑन रिलायंस, यू एक्सप्लेन दैट कुछ भी हो वो 1835 वो देखेगा। ये डेट आर ग्रेड है। यस तो एक बात तो कंफर्म है कि डेट जब तक डार्क ग्रीन नहीं हो मुझे बाइंग नहीं करना है। नहीं दैट इज वेरी क्लियर। यस सर सेफ, इजी, इफेक्टिव, ये 3 कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। बिल्कुल। और डेट डार्क ग्रीन में 2309 और 1991 ये डिस्ट्रीब्यूशन था। यस 1991 के नीचे क्लोज आ गया। आ गया सर। तो इस दिन डार्क ग्रेड में जब भी ये रिसेंट डार्क ग्रेड का टॉप भी है, डार्क ग्रेड की बॉटम भी है, डार्क ग्रेड का लो भी है, और ब्लू कलर का बॉटम भी लोअर से करता है, तो बाइंग तो करना ही नहीं है। नहीं 1991 के नीचे
क्लोज हो गया। यस और नो, कभी 2 यस नवंबर यस को बिल्कुल, वो क्विकली क्लोज उसके एकदम हाँ सेकंड डे ही हो गया। यस सर। कंफर्म हो गया। तो एक ही बात है, प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। On 2nd November, prices are actually falling. Yes, falling. Third also, हाँ. From where, which level prices stopped rising and started falling? First time it has stopped rising and started falling from 2,300 Okay. and 309. हाँ. Second time it has started rising and started falling from 2065. Yes. And it is going above 2065 on 9th November, 10th November, 11th November. And it has managed to close also above 2065. Right. But still, date is not dark green, up arrow is not dark green, bottom is not dark green. ये तीनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई नहीं हुई है. Right. It has stopped falling, but इसका मतलब ये नहीं है कि it has continued to rise further. Once again, it is falling, coming up to 1895. तो ये जो जोन बना था, नो ट्रेडिंग जोन है ये. Yeah. Orange color, date orange color is a no trading zone in a bear house. तो ये 2065 और 1835 के बीच में फंस गया. Right. And it is trading only between those two levels. Once again, 3rd December को prices stopped rising and started falling from 1981. और आज 1981 के ऊपर क्लोज आया है. बट अभी यहाँ पे हम हरू सीख रहे हैं फॉर गाइडलाइन. बट एक्चुअली जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1981 के ऊपर बंद है. अगेन ये आज भी 2014 तक जाकर हमारी सिस्टम में एक इंडिकेटर है स्टॉप एंड यूज टू सेल. वहां से वो स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर ही बंद हुआ है. तो स्टिल डिसिसिवली ये 1981 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है. आप सिर्फ इतने पकड़ो कि कलर डार्क ग्रीन नहीं हो, अप एरो डार्क ग्रीन नहीं हो, प्रीवियस बॉटम भी डार्क ग्रीन नहीं हो, तब तक रिलायंस में बाइंग नहीं है. बाइंग नहीं है, बाइंग नहीं है. ठीक है सर, क्लियर. ठीक है. सेफ, इजी, इफेक्टिव. यस. ठीक है. हाँ, थैंक यू. अपने को एक्सपर्ट नहीं बनना है, इस बाजार में कोई बहादुरी नहीं दिखानी है. संदीप हाय सर, बोलो. आपको सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी? ओके सर, मेरा 3 क्वेश्चंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ऑर्डर फार्मा को ओपन करोगे, आप जो डिस्कस कर रहे थे उस हिसाब से मैं देख रहा था. इसमें देखिए कभी कभी ये ना डार्क रेड, हाँ ब्लड रेड कलर में हाईलाइट कर रहा है, जो डार्क मैरून है. हाँ ऊपर चला गया ये वाला डार्क. हाँ वो नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा टाइप का है. थोड़ा आप ऊपर स्क्रॉल करो. कौन सी डेट में जाऊं? देखिए डेट एग्जैक्ट तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करो ना ऊपर. मैं बोल रहा हूँ डार्क मैरून कलर का जो आएगा, लिटिल बिट मोर. 937 का पास कुछ प्राइस था हाई में. हाँ ये वाला 967. तो आप पिछले दिन जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें आप बोल रहे थे 967 आ गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा. तो मैं फॉलो कर रहा था और ऐसा भी देखा, जब भी इस टाइप का कलर आ रहा है ना, तो उसके बाद ये शेयर का प्राइस मैक्सिमम उतना ही जा रहा है, उसका ऊपर नहीं जा रहा है. तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या ये कलर का? देखो, सबसे पहली बात, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ
और कह दिया हो तो गलत है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ये सब है ना डिक्टेट हो गया। वी कैन नॉट डिक्टेट द मार्केट। ये 967 हाफ कवर है, ये मैंने आपको नहीं समझाया है इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता। बट 967 हाफ का इम्पोर्टेंस ये है ये नॉट ऑन द इसके पहले 967 पे आपको, हाँ पहले भी आया आ चुका है। ये 770 40 जो बॉटम है 967 के पहले, वो 770 के नीचे क्लोज दिया उसने 9 सितंबर को नहीं दिया। 770 के नीचे इट इज क्लोज 24 सितंबर। हाँ यस और नो? यस, तो ये बॉटम 807, ये बॉटम 771, ये बॉटम 850, ये बॉटम 770, ये सबके नीचे बंद हो गया। राइट। इसका मतलब ये बॉटम के बाद के जितने भी हाईलाइटेड हाई है 967 हाफ, इसके ऊपर क्लोज होगा तो ही न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। उसके ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके ऊपर क्लोज होना बहुत मुश्किल है। तो अब 886, तो ये 850 भी ट्रेड कर लिया, तो अब 886 के ऊपर क्लोज होना मुश्किल है। ये 770 और 90 भी ट्रेड कर लिया, तो इसके बाद जो टॉप था 851, इसके ऊपर भी क्लोज देना मुश्किल है। ओके 807 भी ट्रेड कर लिया लोअर साइड, उसके नीचे बंद हो गया, तो 857 ये सब रेजिस्टेंस हो गए। आप समझ रहे हो? अच्छा। इसलिए 849 जो है वहीं तक आ रहा है। 967 तो दूर की बात है, पहले ये जो रिसेंट है 851 858, चलो ये दोनों में से एक ही ले लो, पहले 858 के ऊपर तो क्लोज हो तो 886 की जर्नी होगी, 886 के ऊपर क्लोज तो हो तो 967 की जर्नी बनेगी। ओके और ये यहाँ पे 738 इट इज नॉट ट्रेडिंग ऑन लोअर साइड, राइट? इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। तो देखो ये 858 तक ही आया इस दिन, 858 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज नहीं हो रहा है। तो व्हाट डज इट सजेस्ट कि हम जब भी बाइंग में है, अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो ये डार्क ग्रीन हुआ, बॉटम भी डार्क ग्रीन हुआ, अप एरो भी डार्क ग्रीन हुआ, हायर बॉटम भी है वो भी डार्क ग्रीन है दोनों, तो ठीक है ना। फर्स्ट दिन व्हाट 858 के ऊपर बंद किया, यहाँ पे 849 है, अगर 858 के ऊपर बंद हुआ तो ही 887 की जर्नी बनेगी, तो 887 भी नहीं ट्रेड किया। अब 887 ट्रेड कर लिया उसने तो 967 भी बनी, बट फर्स्ट टाइम प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 967। राइट। Though date is dark green, up arrow is dark green, bottom is dark green, तो 967 जब भी आएगा उसके आसपास तो इट विल एक्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल। राइट एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था अगर मुझे एंट्री भी लेना है दैट मीन वो 967 लेवल के आसपास जाकर मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो दैट वाज द डाउट। राइट, आई गॉट इट। क्योंकि बाजार कहाँ से चालू हुआ? 967 से। एग्जैक्टली। तो 967 का इम्पोर्टेंस क्यों है? हाँ 967 का इम्पोर्टेंस क्यों है? वो मतलब मुझे जो लग रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऐसा कुछ क्यों है? अगर आप समझोगे तो बाकी स्क्रिप्ट में आप कर पाओगे, नहीं तो मुझे ही फॉलो करते रहोगे। 967 का इम्पोर्टेंस इसलिए है, इसका प्रीवियस बॉटम जो है 770 रुपये 40 पैसे, इसके ऊपर उसने क्लोज दे दिया है। हाँ ठीक है, ओके। go to someone else.
विक्रम बोलो। विक्रम। हाँ सर, जस्ट मुझे एक ऐसी जेनेरिक क्वेश्चन पूछना है। सपोज मुझे सिस्टम को रियली फॉलो करना है, समझना है कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मुझे कितने साल का डेटा देखने से रियली मुझे पूरा फ्लो पता चलेगा कि इट्स वर्क और नॉट? 3 इयर्स और लाइक 7-8 इयर्स? मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ 3 साल, 5 साल, 10 साल। मैं कहता हूँ कि जितनी भी बार मेजर इवेंट्स, मेजर हाँ राइज और हाँ फॉल आए हो, हाँ वो सब मेजर राइज, मेजर फॉल, मेजर इवेंट्स जितने भी है हाँ 1992 से लेकर आज तक, जो हाँ भी आपको याद आ रहे हो, हाँ जैसे ट्विन टावर ब्लास्ट हो, या हाँ केतन पारे की तेजी का टाइम हो, या कहीं मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी तब की बात हो, या कोई आरबीआई पॉलिसी हो, या पर्टिकुलर हाँ स्क्रिप्ट कर रहे हो, जितने भी कंपनी रिजल्ट जब जब आए थे, हाँ समझ रहे हो? हाँ, समझ गया। ओवरऑल मार्केट है तो मेजर इवेंट्स, मेजर राइज एंड मेजर फॉल्स के समय आप जाके स्टडी करोगे। दिस इज रियली ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो क्या वो मेजर राइज एंड मेजर फॉल होने से हाँ पहले क्या हाँ सिस्टम में डिस्काउंटेड था? हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था। अभी जो मेजर फॉल आया था मार्च में, और जैसे यार डीमोनेटाइज केस में, ये एकदम से हुआ या पहले से हो रहा था? जैसे एक न्यूज को यूज करके इन्होंने फॉल करा दिया। जाके देखो, बोलो कोई भी एक स्क्रिप्ट बोलो, कोई भी एक इवेंट बोलो, अभी जाके देखते हैं। ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो हुआ था, एकदम से फॉल आया था एक बोलो बार। ना, कोई भी एक स्क्रिप्ट बोलो और पीरियड बोलो। डिमोनेटाइजेशन अच्छा, 8 नवंबर को आया। हाँ, नवंबर में था ध्यान, 2017 हाँ नवंबर में था 2016। 16 या 17? 17 था, राइट 17 था। एक मिनट में देख, हाँ एक मिनट में बात कर रहा हूँ बेटू, बाद में बात करेंगे। हाँ, अरे बात कर रहा हूँ। पापा मैं टैबलेट क्यों टूटे बट भी अभी मैंने पढ़ के उठाओ। ठीक, हाँ सर एक मिनट वो, हाँ मम्मा पापा ने कहा। और आप टाटा स्टील लीजिए उसको। कौन सी डेट? एक मिनट में दे, हाँ 2017 था 8। ये यहाँ से ग्रीन ही चल रहा है। अच्छा, ये शुरू हो गया था रेड। आठ नवंबर 2017 था ना? हाँ हाँ, यही था 8 नवंबर 2017। ऐसे एक इवेंट नहीं, 10 इवेंट पे जाके देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं देखता हूँ, 2-3-4 इवेंट को लेता हूँ, 2008 का और ये, और एक मोदी गवर्नमेंट का टाइम का, एटलीस्ट 3-4 इवेंट तो मैं एनालाइज करता हूँ। देख लो, देखो जैसे यहाँ पे डेट डार्क ग्रीन थी, अपर हाँ, डार्क ग्रीन था, बॉटम डार्क ग्रीन था। तो कब से था? ये यहाँ से था 30 जून से। फर्स्ट टाइम डार्क ग्रीन कब हुआ? 10 मई के बाद में फर्स्ट हाँ टाइम 26 मई को हुआ, राइट? ठीक है, तो हाँ 26 मई से लगातार डार्क ग्रीन है, और इसका बॉटम जो है 412 उसके नीचे नहीं गया, 464 के नीचे नहीं गया,
475 के नीचे बाजार नहीं जा रहा है, हाँ 479 के नीचे नहीं गया, 430 के नीचे हम्म नहीं गया, यहाँ पे 530 के नीचे क्लोज हुआ, राइट। राइट हाँ तो यहाँ पे इसने कह दिया कि अब जब तक ये 545 हम्म के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक ये नया नहीं बढ़ेगा, हाँ राइट। दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन और यहाँ ऑन 541 आ 19 गया। जुलाई। हम्म और यहाँ पे 545 जो अभी हमने बात की कि जो लो उसने तोड़ दिया हो उसके बाद जो हाँ टॉप आया हो उसके ऐसे प्राइसेस टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम वेयर, हम्म फ्रॉम 545 45। तो जब तक राइट 545 45 जो है उसके ऊपर डिसिसिवली क्लोज नहीं देगा, डिसिसिवली मतलब 2-4 रुपया ऊपर रख लेना चाहिए, ठीक है तब हाँ तक ये बाइंग नहीं है। हाँ यहाँ पे 545 तक आ रहा है, उसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ पे 545 546 आ रहा है, उसके ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है। फिर वापस यहाँ पे 545 के ऊपर क्लोज आ गया, फिर डीसीसी हाँ क्लोज था, तो ये वापस हाँ स्टार्टेड मूविंग 596। हम्म अब फिर 531 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, 563 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, 598 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, और 598 के नीचे गया बट इट इज नॉट क्लोजिंग बिलो दैट। 593 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, 641 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, 669 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है 31 अक्टूबर को। नो 669 यस 669 यहाँ पे क्लोज हो गया 7 नवंबर को। हाँ यहाँ पे आपने बाइंग की पोजीशन क्या की होगी, श्योर हो, और आपने ये कहा होगा 7 नवंबर को कि ये 669.86 के नीचे क्लोज हुआ है, तो अब 701 रुपए के ऊपर बंद होगा तो ही नया बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। नहीं पड़ेगा हाँ कब पता चल गया, 7 नवंबर 2017 को। और वैसे राइट भी ये डेट डार्क ग्रीन, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आने लग गए, मतलब डेट डार्क ग्रीन मेंटेन नहीं हो रहा है। बट 7 यस नवंबर को ही 660 के नीचे क्लोज हुआ था, ये डिस्काउंट हो गया था। डिस्काउंट हो गया था अच्छा और उसके बाद में ब्लू कलर का बॉटम आया, हम्म डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, हम्म और 651 के नीचे क्लोज देते ही ऑन 15 हाँ नवंबर फिर 2007 डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, कंफर्म। राइट लाइक दिस यू शुड फॉलो। तो देखो यहाँ पे 701 तक वापस छुड़ाने आ रहा है, 701 के हाँ ऊपर बंद नहीं हो रहा है, बट देन फिर यहाँ पर बंद 701 होना के शुरू ऊपर होगा डेट डार्क ग्रीन, अप एरो डार्क ग्रीन, बॉटम डार्क ग्रीन, तो यहाँ से नया बिजनेस चालू हुआ। फिर 701 के ऊपर ही बॉटम बना रहा है, इट इज फॉलिंग बट राइट अबव 701 नहीं है। ठीक है, इस तरह से फॉलो करो, ऐसे 4-5 ठीक कीवर्ड जाके देखो तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है मैं समझ गया ठीक है सर वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र बोलो। यस सर, थैंक यू। सर बैंक ऑफ बड़ौदा अभी हाल फिलहाल में डार्क ग्रीन में आना चालू हो गया है। मेरा लास्ट वीक ऑफ नवंबर का बाइंग था, मगर प्राइस एक्शन से उसका एग्जिट पॉइंट जरा से डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को आइडेंटिफाई करना। November 2020। डेट कलर डार्क on 9th November, right? Up arrow also dark green, bottom also dark green. So it is in buying since 9th of November for the first time. दोस्तों ना यस यस यहाँ से बाइंग ही है। नाउ ये जब ये 46 60 वाला जो है रुपया ना, था, बोलो 24, ये डेट को सर 24 वाला जो डेट है ना उसमें 46 के आसपास मैंने बाई किया था, 25 ठीक को है। सॉरी। ये 49.90 के ऊपर क्लोज हो गया 26 नवंबर को, तो एक्यूमुलेशन क्या हुआ, कंफर्म हुआ। करेक्ट, यस सर। और यहाँ पे अभी बाइंग में ही है। अब आपको अगर थोड़ा ट्रिकी है, आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जब ये 61 रुपीज था
तो कैसे बिहेव किया था, तो आप पुराने रिकॉर्ड में जाओ, 61 रुपीज में कैसे बिहेव किया था, 61 रुपीज में कैसे बिहेव किया था, 61 रुपीज कब आया था लास्ट, यहाँ पे आया था 27 मार्च को, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होकर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म किया था बाय क्लोजिंग बिलो 5170। yes or no? Yes, तो yes, sir. 61 हाफ जब क्लोज होगा तो ही नया बढ़ेगा। Okay. क्योंकि जब वो 61 के आसपास था तो प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। Correct. अभी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में रह के आज उसने 61 हाफ के ऊपर क्लोज दे दिया। सर मगर ये यहाँ पे कोविड वाला सिचुएशन आ गया था ना, इस वजह से भी तो वो फॉल हो सकता है ना। श्री कृष्ण शरणम मम। कोविड वाला सिचुएशन था या कोई भी इवेंट था, कुछ भी हो, अपनी सिस्टम में ऑलरेडी फॉल डिस्काउंटेड था या नहीं था, यही देखना है। कोविड कब आया? 27 मार्च के बाद लॉकडाउन आया। यस सर। यहाँ पे डार्क ग्रेड कब से है? 120 से नीचे आया वो। जनवरी से, 8 जनवरी से डार्क ग्रेड है। आप और मैं न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट कब समझ पाएंगे? हम नहीं समझ सकते। हम तो यही समझ सकते हैं कि डेट डार्क ग्रेड है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन आया था और 93 हाफ के नीचे बंद हो गया। यस और नो? यस सर। तो अब 99 के ऊपर बंद होगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। वापस डिस्ट्रीब्यूशन आया। यस यस सर। और 8540 के नीचे बंद हो गया 17 फरवरी को। यस सर। तो अब 93 के ऊपर बंद होगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ओके। वापस डिस्ट्रीब्यूशन आया। यस है सर। ना? यस 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 सर। और ये 46 हाफ के नीचे नहीं जा रहा है, राइट? करेक्ट सर। और ये 46 हाफ के नीचे कब गया? यहाँ पर 46 हाफ ही आया। इट इज नॉट क्लोजिंग बिलो 46 हाफ, लेकिन यहाँ पे क्लोज हो गया 46 हाफ के नीचे। यस सर। तो ये 69 जो है उसके ऊपर डिसॉल्व विल बी एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो कोविड आया 22 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च। हमारे पास सेलिंग जो था माय डियर फ्रेंड 8 जनवरी से 100 रुपए से सेलिंग है, और कोविड की न्यूज आई 31 मार्च के बाद जब वो 50 रुपया हो गया, आधा हो गया। प्लीज समझो ना, न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन का उसके कारण ही बाजार बढ़ता है टूटता है, उसका इम्पैक्ट है। एफआई, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशंस, वो लोग अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनका इम्पैक्ट है। लेकिन एक बात ये भी समझ लो कि न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन जब वो उसका इम्पैक्ट हम सीखने के लिए, हम समझने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। ओके। यस सर। क्योंकि प्राइस हैज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। कीप इट सिंपल। नो, कितने इवेंट है, कितने इवेंट्स के बारे में हम एक्सपर्टाइज करेंगे? उससे अच्छा इतना एक्सपर्टाइज कर लो, डेट कलर डार्क ग्रीन, हाई डार्क रेड, डेट कलर डार्क रेड, हाई डार्क रेड, डाउन एरो डार्क रेड। इतना ये 3 पॉइंट कर लो ना, बहुत है ना। क्यों न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन को हमको जाना है? ओके सर। इस तरह से
माय रिक्वेस्ट है वीरेंद्र, यस सर। कोविड के अलावा जितने भी इवेंट्स आए हैं वो सब क्या इतनी छोटी सी सिस्टम में, इतने छोटे से 3 पॉइंट में डिस्काउंटेड था या नहीं था, देख लो, सीख लो, जान लो, फिर फॉलो करो ना। 1995 से रिकॉर्ड है हमारे पास। यस सर। ओके, यस सर, आई फॉलो इट। यस। उदय बोलो, जल्दी से बोलो। मेहुल तुम लेट आ रहे हो, बहुत सारे मैसेज थे तुम्हारे और तुमने हैंड रेज किया ही नहीं है तो आए ही नहीं थे। नाउ यू आर कमिंग, एंड ऑफ द वेबिनार। उदय बोलो। हाँ सर, ऐसा है कि देखिए, ये तो मैंने तो बहुत सारे केस स्टडीज किया और मेरे को ये समझ में आ गया कि ये सिस्टम बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसके ऊपर अगर हमको अगर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ये ग्रीन पता चल गया तो हम लोग इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट आराम से डिसाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि विद इन मार्केट ये क्या है, इसका क्लोजिंग हमको देखना पड़ता है, लेकिन विद इन मार्केट ड्यूरिंग मार्केट हम इसका यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये सब डेली क्लोजेस है, राइट? तो ओवरली क्लोजेस और डेली मिनट में चले क्लोजेस जाओ। वाला तो है नहीं। तो आपको अवर, मैं तो कहता हूँ कि आप क्यों डेली अवरली क्लोजेस इतना सारा, जब पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसिव ट्रेडिंग कर रहे हो, व्यू बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अवरली हेलो क्लोज देखने का क्या मतलब है? मेरा क्वेश्चन ये था सर, एक्चुअली क्या है कि आज जब रिलायंस का बात हुआ ना, इसमें मैंने देखा, तो मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब लोग बोल रहे थे अभी रिलायंस में तेजी आएगी, तेजी आएगी, तेजी आएगी, 2300 जाएगा। कोई कोई तो ऑप्शंस का ट्रेडिंग इतना बोल रहा था कि वो लोग बोल रहे थे कि अभी तो ये रुकेगा नहीं वगैरह वगैरह। मैं मानता हूँ कि जब तक वो 2335 या जो भी अपना नंबर था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक वो आगे चलने वाला नहीं है। लेकिन मतलब आप ये भी उतना लंबा बोल क्यों रखते हो? आप ये सिर्फ 2095 रखो ना, जहाँ पे अक्यूमुलेशन फेल हुआ था। ओके 2300 ओके क्यों रख रहे हो? इतना लंबा क्यों भाव रख रहे हो? 2095 है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ, 1835 के नीचे अक्यूमुलेशन फेल होगा, 2095 के ऊपर अक्यूमुलेशन कंफर्म होगा। करेक्ट। आप 2300 को पकड़ोगे तो 20% यहाँ से नफा चला जाएगा। एक सही डेट तो है, सही डार्क बात ग्रीन है। होने दो, डेट तो डार्क ग्रीन होने दो, अप एरो तो डार्क ग्रीन होने दो, बॉटम तो हाईलाइटेड होने दो डार्क ग्रीन, और 2095 के ऊपर तो क्लोज होने दो, तो अक्यूमुलेशन कंफर्म होगा। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट। मेरा ये पॉइंट मिस हो गया, सॉरी। बात एकदम सही है, मान गया। और उस दिन हो जाए ना, उस दिन दौड़ के बाइंग नहीं करना है, मिलेगा। अगर आपको समझ में आता है कि बाइंग करना है तो अपने बाप बैठे इस बाजार में, जिनको समझ में आ रहा है कि बाइंग करना है, तो वापस एक बार नीचे आएगा। बाजार कभी भी आपको माल दिए बगैर नहीं बढ़ेगा, अगर आप बाजार की समझ गया सुनते हो सर, तो। सही बात है। जल्दबाजी अपने को इतना करने का जरूरत नहीं है कि हमको रातों रात करोड़पति नहीं बनने का। सही बात है। रातों रात करोड़पति कोई बन भी नहीं सकता है इस बाजार में। मेरे साथ बोलोगे? यस सर। कैन यू रिपीट आफ्टर मी? इस बाजार श्योरली सर, में, श्योरली। इस बाजार में, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, इस बाजार में इस बाजार इस बाजार में जिंदगी जिंदगी भर जिंदगी भर कमाने का रास्ता कमाने का रास्ता है। है। जिंदगी भर का जिंदगी भर का एक साथ में, एक साथ में, एक बार में एक बार में कमाने का रास्ता कमाने का रास्ता नहीं है, पास नहीं है। अपने पास नहीं है। अगर परफेक्ट। रहता अगर रहता तो रिलायंस, नाउ नेक्स्ट में आपको रिपीट नहीं करना, अगर रहता ना तो मुकेश भाई जामनगर की फैक्ट्री नहीं चलाते, इतना बिजनेस नहीं करते, रिलायंस चला चला के कमा लेते।
ठीक है, we can earn in this market for the lifetime. We cannot earn at one time of lifetime on first one attempt, two attempts. करेक्ट सर, करेक्ट सर। हमको ये सब सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो एकदम कन्विंस हूँ ये सिस्टम के ऊपर। हाँ, मैं तो आपको कुछ थैंक यू दिया वेरी ही मच। नहीं यार, कुछ देने के लिए दिया मतलब ही नहीं, लेते जाओ। इसका मतलब ये कि हमको कुछ पता नहीं था, फिर भी हम लोग पैसा डाल रहे थे। मैं तो ऐसा नहीं बोल अभी सकता हूँ हमको ना। मेरे मेरे नहीं, साथ लेकिन जो मैं जुड़े कन्विंस्ड हूँ। पार्टिसिपेंट है उनको मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, क्योंकि वो शिक्षा परिवार से हैं। यहाँ पे मैं एक आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट पब्लिक से बात कर रहा हूँ तो पब्लिक में मुझे थोड़ा संभल के बात करना पड़ता है ना। आई कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। लेकिन सर एज ए कैंडिडेट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो ये सिस्टम के ऊपर ओवरवेल्म्ड हूँ। मेरे को तो एकदम सही लगता है। इसके पहले मतलब मेरे को ये भी पता है कि इसके पहले हम लोग सर, गुजराती में हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि हम लोग अंधारा में तीर मारते थे। 90% traders are losing money in this market because they are listening to someone else. आई वॉज वन ऑफ देम। अभी तो मैं थोड़ा, मेरे को अभी देखने को थोड़ा आ गया कि ऐसे ऐसे देख के अपना डिसीजन खुद लेने का अभी तो आ गया थोड़ा बहुत मेरे को। With borrowed ऐसा मैं knowledge कुछ and borrowed money, with borrowed knowledge and borrowed money, no one can earn in this market. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। आपका पासवर्ड किसी और के पास है तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे चलेगा? ठीक है, लेट मी गो टू समवन एल्स। क्या हुआ, अचानक से बहुत लोग आ गए यार। बहुत लंबा वेबिनार चलेगा तो इट वोंट बी इंटरेस्टिंग। मेहुल बोलो। Yes, sir. First of all, sorry for late. I am in job, so I'm not able to join on time. Sorry for the भाई late. आपको मार्केट को बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है ना, दैट मैटर्स। Yes, ठीक sir. है, Yes, बोलो। sir. Sir, I want to know about the Infosys because I have missed. I think so. I have missed that information on the Infosys. ये वेबिनार YouTube में अभी घंटे भर में अपलोड हो जाएगा। इसमें हमने इन्फोसिस Yes, की sir. बात की है, आप सुन लेना। ठीक है सर। उसमें मतलब मुझे, मैंने उसमें पोजीशन लिया है तो खाली एक जानना था कि सही है या मतलब सही मैंने देख के लिया है या। अब कल का मेहुल, कल का भी वेबिनार है इन्फोसिस। कल का तो मैंने अटेंड किया था सर। कल कल भी का मैंने वेबिनार पूरा अटेंड कंटिन्यू किया। है। टुमारो आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो आल्सो देयर इज अ वेबिनार। ओके सर। पेरी सेशन का वेबिनार कल भी है। आप आज इन्फोसिस सुन लो जो रिकॉर्डेड है, फिर कल बात करेंगे। ठीक है सर। तो फिर एक बार मुझे वो अदानी पोर्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं? मैं क्या, आप क्वेरी पूछो, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि ये बाय करो ये सेल करो, मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। सर अदानी पोर्ट मैंने जैसे चेक किया था अपना ये शिक्षा वाले पोर्टल पे, तो उसमें बाइंग पोजीशन में मेरे हिसाब से मतलब जो समझा मैं उसके हिसाब से मुझे बाइंग पोजीशन में लग रहा था, लेकिन एग्जैक्ट में कंफर्म नहीं था कि मतलब एग्जैक्ट में सही हूँ या गलत हूँ, तो वही कंफर्मेशन चाहिए था सर। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? 12 अगस्त से डेट का कलर डार्क ग्रीन है, अप एरो डार्क ग्रीन है, बॉटम डार्क ग्रीन है। यस सर। 12 अगस्त से 340 से ये लगातार बढ़ डार्क रहा ग्रीन है। उसके बाद यस सर। एक बार भी उसने बॉटम के नीचे बंद नहीं किया, 308 के नीचे बंद नहीं हुआ। फिर बॉटम 341 है, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, एक बार भी नहीं दिया है। यहाँ पे दिया है तो रेड कलर के टॉप आ गए थे, तो वहीं पे निकलना था एज पर द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो गाइडलाइन है। फिर डेट कलर डार्क ग्रीन 8 अक्टूबर से न्यू राउंड ऑफ बाइंग हैज बिगन। यस सर। और रिसेंट हाई जो है 395। यस सर, 395 नवंबर से नया नया $3 का बॉटम बना के बढ़ रहा है।
395 से और न्यू राउंड ऑफ बाइंग इज बिकम 25 नवंबर के बाद से। यस सर, क्या यस पूछना सर। है एकदम क्लियर मतलब कर जब दो बाइंग में। बाइंग नहीं है सर, बस यही कंफर्म करना था एक सर कि मैंने देखा तो था मतलब। ठीक है, जाऊं किसी और के पास? कैन आई अटेंड समवन एल्स? हाँ विपुल बोलिए। लास्ट क्वेरी विपुल बोलिए। विपुल मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा तो ही बात होगी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून यस सर। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ सर, हाँ सर। मुझे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में थोड़ा देखना था और एक दो पॉइंट जस्ट बता रहे थे। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को था, तो सर आप जो देख रहे थे 2017 में शायद वो इवेंट बराबर नहीं था वहां पर। ओके ठीक है, हम टाटा स्टील में जाके फिर से वो देख लेते हैं ताकि हाँ, वो पॉइंट 2016 क्लियर में हो था जाए। सर। नवंबर 8 को था। नवंबर 2016 क्या है ये? डिस्काउंटेड था? एट नवंबर 2016 राइट? हाँ सर। यहाँ पे डेट डार्क था और डार्क ग्रीन था और बॉटम 349 था, उसके ऊपर ही है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और तो डिस्ट्रीब्यूशन होते ही यहाँ पे कह दिया कि एग्जिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में स्काई ब्लू कलर up arrow along with previous recent bottom low is highlighted with sky blue color, alert है और एग्जिट है। हाँ सर। yes or no? हाँ, अलर्ट एंड तो यहाँ हाँ करेक्ट सर। 3 अक्टूबर को यहाँ पे बाइंग की पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करने का अपने को इंडिकेशन मिल गया है कि अब बराबर सर। डिस्ट्रीब्यूशन फेल कब होगा? जब 41160 के ऊपर बंद होगा। जब तक हाँ सर। 41160 के ऊपर बंद नहीं होता है तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। कंफर्म तब होगा जब 365 के नीचे बंद होगा। तो देखो बराबर सर। 411 के ऊपर एक बार भी गया ही नहीं। 8 नवंबर को हाँ, भी नीचे ही आ रहा है। 365 411 के ऊपर नहीं गया। यहाँ पे 411 के ऊपर गया बट डेट वाज नॉट डार्क ग्रीन, ऑरेंज में ही था। हियर डिजिट इट इज नॉट क्लोजिंग अबव 411। फिर ये 420 जो है यहाँ तक आके फिर से वापस डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया 23 नवंबर को। इसने कहा कि भाई 420 के ऊपर बंद होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूशन फेल होगा। एक बार 420 के आसपास जहाँ भी आता है निकल जाओ 349। तो ये वापस 401, 414, 415, 420 तक ही आ रहा है और 420 के पहले जो लो था 349, जब तक 420 ट्रेड नहीं करेगा 349 आएगा। 420 ट्रेड नहीं करेगा तब तक 349 आएगा। आया। दिस इज हाउ मार्केट बिहेव्स। ठीक है, आपकी स्क्रिप्ट में आते हैं हीरो मोटर। इससे एक ही बात है कि जो अलर्ट्स या एग्जिट जो आते हैं उस टाइम पे हमको एक्शन लेना है। एक्चुअली सिर्फ देख के बैठे नहीं रहना है एक्सपेक्टेशन के ये तो चला जाएगा करके। अगर वो एक्शन वहां पे नहीं लेते तो वी वुड हैव बीन एट 350। यस, रीइनिशिएट कर लो ना। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो बाजार में डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि कितने लोग हैं बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको सब कुछ मालूम है और वो एक्शन यहाँ पे बाजार में ले ही लेते हैं बाई सेल का।
बोलो हीरो मोटर में हूँ मैं। हाँ, तो कितना भी जाए, जो भी हो, उस दौरान हमको चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा हो, बेसिकली वो टाइम पे जो एक्शन है वो एक्शन लेना है उधर। यस यस ऑब्वियसली। दैट इज द डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेरे हिसाब से, अगर कमाना है या जो भी करना है। बराबर। हाँ सर, तो अभी हीरो मोटोकॉर्प में अगर मैं काफी स्टडी कर रहा था इसको, तो इसका जो है अपना अभी का कलर है डार्क ग्रीन, डार्क एरो है और डार्क ग्रीन बॉटम है, तो यानी कि ये अपने बुल जोन में है। और ये कब से है? डार्क डेट लास्ट इसकी 28 पैटर्न सितंबर जो को है था। डार्क ग्रीन की बनी थी करीब 29 पहला 8 अक्टूबर से, अभी रिसेंट वन। ठीक है। 8 अक्टूबर पहले रिसेंट अभी पैटर्न स्टार्ट हुई है, बराबर सर। हाँ, तो उसके बाद इमीडिएटली एक ये रेड टॉप या ऑरेंज टॉप गिने, करीब 3400 के करीब टॉप आया और उसके बाद अक्यूमुलेशन आया और अक्यूमुलेशन के बाद सीधा आ गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये अक्यूमुलेशन फ्लॉप हो गया। इसको कैसे गिनते हैं सर? ये जो पिंक टॉप नहीं है फिर भी अक्यूमुलेशन पिंक एरो है, तो ये अक्यूमुलेशन ही गिनना है इसको सर? यहाँ पर पिंक डाउन एरो है और यहाँ पे पिंक टॉप था उस समय, बाद में कलर चेंज हुआ है, नॉट एन इश्यू। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है 3 नवंबर से। तो यहाँ पे एक बात पता चल गई कि हाँ, 33 एनी राइज 3394 और अक्टूबर ना सर? 2787 नहीं है। 3 हाँ, तो नवंबर ये को जो से इसको कैसे, वही समझा रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। 3 नवंबर हाँ को सर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, 30 अक्टूबर को। नहीं ये both conditions should match, up arrow dark sky blue and bottom also sky blue। ये 3 हाँ नवंबर हाँ को सर, था। हाँ सर, बराबर, हाँ बराबर 3 नवंबर सर। और डार्क ग्रीन में है, इसके लिए एकदम घबरा के बेचने की जरूरत नहीं। घबराना तब है जब 2787 के नीचे बंद हो, तब बराबर तक है। अपने को राइजिंग प्राइस मिलता ही रहेगा। ये 3148 3100 ये सब निकलने के भाव है हीरो मोटर में से। आज भी 3200 कम से कम बाइंग आ रहा है। पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर रहे हो, पैसिव ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसमें बाइंग नहीं है। अगर बाइंग है तो भी फर्स्ट जर्नी इज ओनली अप टू 3394, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था। और जब भी 3394 आता है या उसके आसपास भी आता है 3300 3320 350, तो वहां पे फ्रेश बाइंग नहीं होनी चाहिए। एक डेट डार्क ग्रीन, अप एरो डार्क ग्रीन, बॉटम डार्क ग्रीन, हायर बॉटम डार्क ग्रीन, ये सब समझ के हमने बाइंग किया हो। 3148 के ऊपर बंद भी आ रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन कंफर्म हुआ, इसके लिए भी हमने बाइंग किया हो, बाइंग में ही है। बट कीप इट माइंड व्हेनेवर इट अप्रोचेस 3394 वी शुड स्क्वायर ऑफ द पोजीशन, क्योंकि 3395 के आसपास आकर 3395 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है। और वहां से अगर एक डार्क रेड कलर का टॉप हो गया, डार्क रेड कलर का डाउन मूव हो गया, तो 2787 भी लोअर से ट्रेड करके जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 3394 और 2787 के बीच में बेसिकली ये ट्रेडिंग जोन है। और और जब तक ये 3200 के ऊपर, जैसे आज इसने क्लोज दिया है करीब 3162, व्हिच इज क्लोजर लोअर देन द यस्टरडेज हाई एंड इवन द क्लोजिंग प्राइस। तो इसका मतलब है ये जो है उसको हम लोग तब तक पकड़ के रखते हैं जब तक वो करीब पहला बॉटम जो अभी इमीडिएट नियर बॉटम है 2976 का 26/11 को, अगर वहां तक वो नहीं पहुंचता है तो वी आर स्टिल कैन होल्ड इट अंटिल अप टू 3394। अगर उसके आजू बाजू आता है तो उधर से निकल जाना है। बराबर है सर मेरी रीडिंग? ट्रेडर्स, इन शॉर्ट ट्रेडर्स जो है ना, ट्रेडर उनको बाइंग करने दो, क्योंकि डेट का डार्क ग्रीन है, अपेरो डार्क ग्रीन है, बॉटम भी डार्क ग्रीन है, तो ट्रेडर्स को जर्नी मिलेगी।
लेकिन जो पोजिशन लीडर्स है, इन्वेस्टर्स है हीरो मोटर में, वो तब तक बाइंग नहीं करेंगे जब तक, अब 100 रुपए की तो 100 रुपए तो बाकी रहा, 200 रुपए तो बाकी रहा, तो जब तक ये 3394 के ऊपर बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये 3400 के बाद ही हम लोग अगर पोजीशन लेनी है तो ले सकते हैं, उसके पहले हम लोग को अगर ट्रेडिंग करनी है तो ठीक है, ऐसा बोल रहे हो सर? हाँ, 3400 के ऊपर भी बंद हो गए तो वापस 3200 आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो एक बार आप बोल रहे हो वहां से फिर थोड़ा, तो बढ़ता ही नहीं तो है, ये सीधा सर, तो हाँ, बढ़ा ये भैया। एक क्वेश्चन में, हाँ सर, इसमें ये एक ही क्वेश्चन था कि इसकी जर्नी कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, कहाँ से कितना तक जाता है ऊपर या कितना वापस वहां से कितना नीचे आता है, उसके लिए कुछ इसमें से कैसे देख सकते हैं, अगर मुझे देखना है तो, स्टडी करना है तो? बहुत मुश्किल है ना इस तरह से क्वेरी वेबिनार जैसे में। कि 3400 के ऊपर अगर जैसे आप बोल रहे हो तो वहां से उसकी ऊपर की जर्नी कितनी हो सकती है अगर मुझे पोजीशन लेनी हो, या उसके नीचे कितना स्टॉप लॉस लेके रखना है, तो वो यहाँ पे ये रिपोर्ट में कुछ स्टडी हो सकता है ऐसा कुछ? वी नो दैट, बट अगेन विपुल, जितने लोग सैटरडे संडे थे ना, हाँ सर, देखने में उसके 25% ही स्ट्रेंथ है ना यहाँ पर अभी है क्वेरी सेशन। अच्छा, आप समझ रहे हो? हाउ डू आई गेट मोटिवेटेड टू गिव मोर एंड मोर? बट आई फील ये 25% है वो ज्यादा डेडिकेटेड और इंटरेस्टेड है। हमेशा यही डर रहता है कि बहुत ज्यादा दे दिया तो फॉलो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। हाँ सर, वो भी है, बट आज का अगर आप क्राउड देखो सिर्फ 25%, तो मेरे ख्याल से ये सारे सब इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपसे अभी आज भी ज्वाइन किया है, तो उनको साथ ज्यादा सीखना है सबको, हम लोगों को। उनको कम से कम यहाँ तक पहुंचाए, तो मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि यू बीन फॉलोइंग प्राइस फॉर रिपोर्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। कब से फॉलो कर रहे हो आप? मैं करीब 2-3 अटेंड किए हैं आपके, पर उसमें जब भी मैं वापस जाके देखता हूँ ना सर, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ ही जाता है, जैसे कभी भी कोई स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि इसका देखना है। इसलिए कह रहा हूँ, बीच में मत जाओ। हाँ, डोंट गो मच, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है इतना फॉलो कर सकते हैं ना, तो बस, क्योंकि इतनी ही लिमिटेशन है इसकी। यहाँ से कम अपने हाँ, को ये पर तो सर मालूम पड़ता जब आप कोई स्टडी, सर आप जब कोई स्टडी लेते होते हो और जो आपकी वर्डिंग्स जो आप बोलते हैं ना, कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फॉलिंग, फ्रॉम वेयर इट स्टॉप प्राइसिंग, तो वो बहुत इजी लगता है, पर जब जाके बाद भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ ये मालूम पड़ता है कि यहाँ से फॉल शुरू हुआ था, बट वो जैसे एक डाउट अभी भी है कि वो जैसे अभी 3148 वो ट्रेड करना है उसके ऊपर या उसके ऊपर क्लोज आना है कभी भी, जस्ट रिसेंट जैसे ये अभी 31, अच्छा क्लोज आना है, इट शुड नॉट बी लाइक इट शुड हैव गॉन ट्रेडेड अबाउट। हाँ, तो ये इन्फोसिस में ऐसा ही मैं देख रहा था कि 1154, हाँ इन्फोसिस आप 1158 के ऊपर क्लोज गया, लेकिन क्लोज नहीं आया ना। हाँ बराबर सर, वही तो मुझे लगा कि वो उसको ट्रेड करना है, बट इट शुड आल्सो क्लोज अबाउट दैट, राइट? ट्रेडिंग का मतलब ये एक और होता है कि हमारे शिक्षा में एक प्लान है, उसके ऊपर वो जाके एक लेडर बनाता है, और वो लेडर बनता है तो ही वो बाइंग है। अगर लेडर नहीं बना के स्नेक बना दिया, आप शिक्षा के वेबिनार सपोर्ट में आप जाएंगे यूट्यूब में, तो आपको स्नेक से वाला रिपोर्ट दिखेगा। अच्छा, ट्रेड करना मतलब वो लेडर के साथ बंद होना। अच्छा, अच्छा, वो एक जैसे पाया बन जाता है जहाँ से ऊपर चढ़ेगा वो, ओके, लैंडिंग स्टोन जैसा हो गया। डार्क ग्रीन की लेडर आती है ना, तो ही ट्रेड किया ऐसा हम बोलते हैं। शिक्षा अच्छा वेबिनार सपोर्ट है, जो एग्जिस्टिंग शिक्षित हाँ, है, हाँ, बहुत सिंसियर है, सीरियस, कमिटेड है, और जो फुल कोर्स उन्होंने एनालिसिस सीखा हुआ है एवरी डे ड्यूरिंग द कोर्स, पोस्ट कोर्स, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए वो 3 घंटा देते हैं। समझ रहे हो? हाँ, उनके लिए इवनिंग में शिक्षा वेबिनार सपोर्ट होता है। आप देखोगे शिक्षा वेबिनार सपोर्ट यूट्यूब में डालोगे तो आ जाएगा, वहां पे आपको ऐसे अच्छा, स्क्रीनशॉट
वो दिखेगा जहाँ पे स्नेक्स एंड लेडर्स की साइन आती है। ये फ्री वेबिनार्स में वहाँ पे 95% लोग सिंसियर और सीरियस है। प्राइस एनालिसिस कोर्स जो मेन कोर्स, यहाँ पर जो है फ्री वेबिनार है, इसलिए 25% से भी कम लोग सिंसियर और सीरियस है। आप समझ रहे हो? हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा अगर देने जाऊँ तो 25% भी नहीं रहेंगे। सीखने आगे ना, इतना टाइम दे रहे हैं, वो भी बहुत है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सिर्फ इतना करना है कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। किसी XYZ हिमांशु साकी मत सुनो। लर्न टू ऑपरेट योर ओन ब्रेन, डू नॉट ट्रेड विथ अदर्स ब्रेन। नहीं सर, जैसे आई मीन आपने इतना सारा मेहनत करके ये सिस्टम बनाया है और उसका इतना अच्छी तरह से आप पढ़ाई भी करवा रहे हो, सिखा रहे हो, तो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। एंड हमको थोड़ा बहुत टाइम डालना है, जो सीखना है, जितना आपने कम से कम 10-15 साल या 20 साल से आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें निचोड़ के डाला है, तो हमको तो रेडीमेड उसको मिला हुआ है, तो उसको खाली स्टडी करके देख के उसको अप्लाई करना है थोड़ा बहुत माइंड पे। आप जो तो पैसा, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही बेटर है। मेरी मेहनत की बात छोड़ो, मेरे एफर्ट्स की बात छोड़ो, तो कितने हैं वो मुझे ही मालूम है। लेकिन आपने जो पैसा कमाया है उसके लिए आपने कितने एफर्ट्स किए हैं, उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है। तो वो पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पैसे को ग्रो करने के लिए, आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपकी कैपिटल को ग्रो करने के लिए जो आपके हार्ड अर्न मनी है, आपके हार्ड अर्न एफर्ट्स उसमें है, वो तो किसी और के भरोसे मत करो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। दिस प्राइस फॉर रिपोर्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यू नो आई डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक लाइक दैट। और जब आप ये बात कर रहे हो मेरे एफर्ट्स की, तो ठीक है ना, मेरा एफर्ट्स तो मेरे पास ही है। जब तक आपको नहीं मिले तब तक वो एफर्ट्स आपको कहाँ से यूज होंगे। बट कम से कम आपका पैसा है, आपने वो कमाने के लिए जितने एफर्ट्स लिए हैं उसको तो प्रोटेक्ट करो, उसको तो किसी और की सुन के काम मत करो, हेफाजत वे में काम मत करो। नहीं, बराबर है सर। अगर कोई अगर बताता भी है तो उसको आके एक बार यहाँ पे हमको कंफर्म करना चाहिए कि जो है हम लोग, हमारा दिमाग से सही लग रहा है कि नहीं। ये 3 पॉइंट तो देख ले एक बार बस, से वो लॉस नहीं करेगा, मुझे इतना मालूम है। प्राइस फॉर रिपोर्ट सर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं अगर बाई या सेल ना करूँ, बट एटलीस्ट यहाँ पे एक बार आके देख लेता हूँ, जो भी स्टॉक अगर मेरे दिमाग में आता है तो। उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि भाई यू विल बी ऑलवेज ऑन राइट साइड ऑफ द मार्केट। ठीक है ना? हाँ सर, डायरेक्शन अच्छा मिलता है। Yes, yes. Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye. Take care. Thank you Stay very safe. much, sir.